ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਘ ਮੱਝਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਢੋੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਖਾਂਡੀਐ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਮਾਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਖਾਂਡੀਐ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭਰਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਭਰਮ ਆਪ ਵੀ ਭਟਕਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਾਗ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਤਨੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ ਵੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਮਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ,
बाहरों मल धोवे। कहते मैल तो तेरे लगी हुई है अंदर, उन्होंने धोंदा कोई नहीं, बाहरों मल के धोंदा, उसका लाभ कोई नहीं होना। हजूर के बचन फिर ख्याल में रखे। कह लगे मैं तेनों तीर्थां ते विचरण वाले लोगों की तस्वीर विखाना, वेख उन्हों की हालत की है, उन्होंने मिलिया की है। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, मन खोटा है तन चोर है। एक और लच्छी नहाते हाँ, मान लो जे एक लाभ हो भी गया ना के दो भौ चढ़िए सो होर डबल तू नुकसान कर लेना अपना। बाहर धोती तुमड़ी अंदर विसन कोर, बाहरों काया नूं धो के आ गया, विचार तो तेरे मन की मिली सी, अंदर विसन कोर। साध भले अननाते हाँ, चोर से चोरा चोर। कहती तेरे नालों तो वो बंदा भला है, वो जिहड़ा नेक बंदा वो नहीं भी तीर्थां ते नहाता वो तद भी चंगा है। तो तू चोर ही गया ते चोर ही वापस आ गया, तेरे नहाउण नाल की फर्क पैण लगा, की लाभ होया। हजूर का एक वचन होर ध्यान में रखियो। मेरे मालिक जी आखते ने, कहने आ मैं तेन दिखावा उन्होंने लोगों की की हालत है। पाप करे पंचां के वासरे, पंचे विकारां दी अधीनगी के कारण पाप करता है। तीर्थ नहाए कहें सब उतरे, फिर आपे ही परण कर लिया भी तीर्थ से स्नान कर लो तो उतर गए। बहुर कमावे कोई निशंक, दोबारे फिर नझाको के कमाउण लग पैंदा भी हुण तो तीर्थ से जाके स्नान कर ही लेना। जमपुर बंद खरे कलंक, हकीकत की है तेरी जिंदगी में दुखदाई बना देना इन्होंने। अमृत बचन फिर ध्यान में रखियो। शिव जी आखते ने, कहते अंतर मल जे तीर्थ ना वै तिस वैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु न होवे नाही राम ए आना। लोगों की शोभा ले सकना बस, इस तो बदी कुछ भी नहीं। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। सच्चा नहाउणा ते यह है भी गुरु की विचार नाल अपने आप को अंदरों पवित्र करिए। साचा नावण गुर की सेवा। जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहावे। जैसे मेंढक तैसे कोई नर फिर जोनी आवे। कहते मेंढक कहते डड्डू नूं, कहते जिमें जे पानी के नहाते पवित्र हो सकता है मनुख, तो डड्डू तो रोज नहाउंदा है। एक गल होर मैं बेनती करदी हां, जिहड़े अज साडे भी सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ने ना, उन्हों का मकसद तीर्थ नहीं सी, उन्हों का मकसद कुछ होर सी। मैं पिछे भी बेनती की सी, 7 चीज़ों के बड़े वखरेवें सन दुनिया च। गुरु जी ने उन 7 नूं इकट्ठियां कर दिता है। नंबर 1, साडा भगवान एक है, साडा वखरेवा नहीं। सिख जगत का एको ही, समुची मानवता का एको ही भगवान है। दूजी गल, साडा एको ही ध्यान है। ये नहीं भी अज इस देवते का ध्यान करना है, कल इस देवी का ध्यान करना है, परसों उसका करना है, नहीं, एक का ही ध्यान है। साडा एको भगवान है, एको ध्यान है। तीजी गल, साडा एको ही ज्ञान है। ये नहीं है भी गुरुद्वारा साहब कोई आवे तो अमीर लिए हुक्मनामा वखरा है, गरीब लिए वखरा है, एको ही ज्ञान है। जिहड़ी चौथी गल है, साडा एको ही पकवान है, प्रशादा पानी एक थां ते बनदा है। जिहड़ी पंजवीं गल है, वो साडा एको ही पहरान है। सारिਆਂ ने इको तरह के 5 ककार पहने ने, कोई किसी लिए वखरेवा नहीं भी ये लिए बड़ा ये लिए छोटा, कोई ये लिए 4 ने ये लिए 8 ने, कोई वखरेवा नहीं। और बेनती कर लगा सा, ये भी गल चेते रखने वाली है, साडे जीवन में इको ही इशनान है जिहदी गल करना चाहुंदा है। साडे जीवन में इको ही इशनान है, इशनान वखरा नहीं है। ये नहीं भी किसी के नहाउण वास्ते कोई वखरी थां होवे, किसी के नहाउण वास्ते कोई वखरी थां होवे। गुरु जी ने सानू भरमां दे विचों कड्ढण वास्ते इशनान भी साडा एक कर दिता। सारे सरोवर विच इशनान करो ताकि हौमे हंकार
जात बरादरी का जिहड़ा अंदर वड़िया होया वो इत्थों लथ जाए। एक इशनान किया, साडा इको भगवान, इको ध्यान, इको ज्ञान, इको पहरान, इको पकवान, इको ही इशनान, तो साडे जीवन में कोई वखरेवी गल नहीं। ये 6 चीज़ां गुरु ने दुनिया च पईयां होईयां वंडियां सारियां खत्म करके बराबर एक कर दित्तियां सी। गुरु जी ने तो बस एक गल जोड़ दी नाल, इशनान करना गुरमत विच मना नहीं है, पर इनू धर्म नाल जोड़ के सोचे भी मैं पवित्र हो गया, ये साडी भुल है, ये साडी भुल है बहुत वड्डी। हजूर ने किड्डे प्यारे बोल बख्शिश कीते ने। मालिक आखदे ने, कहंदे सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मन नहाओ। तीर्थ नहावा जे तिस भावां, बिन भाने के नहाए करी। जे उन्हां दुनियावी तीर्थां ते नहा के ते मैनूं तेरे दर ते प्रवानगी मिलदी होवे तां मैं नहावां, जदों तैनूं ये नहीं प्रवान ते मैं काहदे लई नहावां? फिर मैं क्यों तीर्थां ते भटकदा फिरां? मैनूं तां गुरु जी ने बड़ी सौखी गल समझा दी, तीर्थ ना वड़ जाऊं, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जिथे मर्जी बैठा होवे, गुरु दे अमृत बचना विच रामदास सरोवर नहाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इशनाना, गुर पूरे कीने जाना। सानूं तां इह दस्सिया सी। साडे ते भी बहुत प्रभाव है। माघ दे महीने शायद इशनान कीतियां रब बहुती गल मन जांदा है, बड़ा वड्डा भरम है। एक गुरबाणी का वचन कह के मैं गल अगे तोरनी, बड़े ध्यान नाल सुनियो। सो सतगुर धन धन, जिन भरमगढ़ तोड़िया। सो सतगुर वाह वाह, जिन हर्षों जोड़िया। मैं उस गुरु तो कुर्बान जाना, धन है जिन्हें भरम के किले नूं उड़ा दिता मेरे जीवन में। गुरु ने हकीकत विच साडे सामने सारा कुछ करके दिखाया। जे इन्ना कुछ समझ के भी साडे जीवन में भटकना नहीं मुकदी, तो माफ़ करियो, गुरु बेचारा क्या करे? गुरु की कर सकता है जदों असीं समझण लई तैयार नहीं? गुरु की कर सकता है? जो सिखा में चूक, जे सिख दे जीवन में ही चूक है, सिख के जीवन में ही कमी है। गुरु अमरदास जी ने स्पष्ट लिख दिता, स्पष्ट कह दिता, मैं 20 साल 21 साल तीर्थां ते रहा, मैनू 20 सालों च कुछ ना लभ सकिया, पर जिदन मैं गुरु के दर ते आया, दुनियादारों में सारे संसार नूं कहना आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक, अंधे एक ना लग गई, जो बांस बजाइए फूक। उपदेश सुनदा जिमें बंसरी दे विचों फूक मारने है, दूजे पासे निकल जाती, कहते इवें तेरे अंदरों गुरु का उपदेश निकल जाता है। कदे उन्हें मन के विचार के देगा। आओ गल गल तो गुरु जी ने सानू भरम की दुनिया चों बांह पकड़ के कढ़िया है। कोशिश करिए अपने अंदरले नूं सुधारिए, अंदरों निर्मल हो जाइए। सूचे इना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। ये नहीं भी मत मना है, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पए अरोगा। वो कला पानी ਲਈ बैठा सी। गुरु जी ने 2 चीज़ां इकट्ठियां कर दित्तियां, पानी ते बाणी। उन्होंने आपां जल भी कह सकते हैं, पर मैं समझण लई बेनती कर रहा है, सरोवर के विच विचकार दरबार साहिब विच विचकार, ताकि पंक्तियां दे अर्थ हो सकन। गुरु नानक साहब ने किड्डा वड्डा सिद्धांत बख्शिश कीता सी, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सखे, मोट पड़ीती कपड़ होए, जे साबुन लईए ओ धोए। पर अगली गल, भरिए मत पापां के संग ओ धोपे नावे केरा। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पे अरोगा। आओ बचनां दी विचार वाल आइए। साहब जी ने कृपा की,
बचन बख्शिश किया 12 महां दी विचार विचों, माग मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। माघ के महीने च मज्जन का अर्थ होंदा इशनान। गुरमुखां दी चरण धूड़ी विच इशनान कर। हुण चरण धूड़ी च किवें इशनान करना? मसला इस चरण धूड़ी का नहीं है। मसला सी भी गुरमुखां की जिंदगी तो प्रभाव कबूल कर, गुरमुखां वाले गुण अपने जीवन विच धारण कर। ये नहीं बई मैं इथों मस्तक ते ला ली धूड़ ते मैं शायद इवें पवित्र हो जाऊंगा। वो भी एक सूचक सी निमरता का, पर असल का भाव यह है भी मैं गुरमुखां के चरणों की धूड़ का अर्थ है मैं अपने जीवन विच निर्माणता निमरता धारण करूं। गुरु उपदेश टिकना ही उत्थे है जिथे निमरता का भाव होवेगा, जिथे हंकार का भाव होवेगा उत्थे जीवन खाली रह जाता है। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। फिर दूजी गल सी, लोकी तीर्थ ते जाके दान करते हैं। सतगुरु कहन लगे तेनों इहो जिहा दान करन दी लोड़ नहीं। की दान करना है? हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं कर दान। बड़ा शब्द प्यारा, बड़ी तवज्जो दी के समझियो। हर का नाम ध्याए सुन। पहला ध्या अपने अंदर, फिर दूजी गल है कि कला ही ध्या के आपे ना मन आपे ही फैसले ना कर ली भी मैं बड़ी दूर पहुँच गया। अजकल बड़ा बड़ा रौला है सारी कौम दे विच। नहीं, सुन, दूजे नूं भी सुन। देखो जिहड़ा जप है ना साडा, आम करके जप के अर्थ होंदे ने भी जुबान तो कोई शब्द बार बार बोलना। साडे वाले जप दे विच गुरु नानक साहब के जप विच 4 पौड़ियां सुने दियां ने। कहते तू बंद कर, दूजे दी सुन, दूजे दी सुन। हर का नाम ध्याए सुन। ध्या भी अंदर टिका भी रब्बी गुणां नूं, फिर सुन दूजिया कोलों भी सुन। हजूर का वचन पढ़ते हो, जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किस कहिए। अज संसार च बहुत बड़ा झमेला है। हरेक बंदा सुनाना चाहता है, सुनना कोई भी नहीं चाहता। हरेक ही सुनाना चाहता है। सारे काले पे ने मैं कदों सुना दिया। सब कहते नहीं भलिया शुरुआत सुनन तो होनी है। हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं कर दान। 2 शब्द आए ने, सबना नूं ते दूजे शब्द है दान। जदों आपां किसी नूं कुछ दिंदे, आपां नूं कदे नहीं पुछदे तू किहड़ी दात है। जदों आपां किसी नूं कुछ दिंदे, आपां नूं कदे नहीं पुछदे तुसीं किस इलाके दे हो। दान का मतलब ये होंदा भी जिहदे नाल मेरी जान पछाण कोई नहीं, लोड़वंद है ते मैं दे के चला गया। सब कहने जिहड़े रब्बी गुणां की सांझ है वो सबना नाल कर। ये ना भी ये मेरे धर्म का है, दूजे धर्म का है, तीजे धर्म का है, ये फलाने देश का है, फलानी जात का नहीं। सबना नूं कर दान। रब की गल ते प्यारे सारिਆਂ नूं सुना दे। कोई इतराज नहीं, कोई जिवें किवें दा मिलदा है, सबना नूं कर दान। फर्क ही पेगा जन्म कर्म मद उतर है। जन्म कर्म ये 2 तरह की मैल है। जेड़े कर्म की की हुई मैल है ना, जिहड़ी आपां पहला पढ़ के आए भी किरत कर्म के विछुड़े, वो मैल लग सकती है। जन्म कर्म मद उतर है। मन का मतलब मैल, मन ते जाए घुमान। हुण 2 शब्दों को मैं तुहाडे नाल मिला के साझे करना चाहुंदा, उन्होंने तवज्जो दे के समझियो। नंबर 1, तीर्थ वरद अरदान कर मन में धरे गुमान। धरे का मतलब धारण करना, गुमान का मतलब अहंकार। एक दुनियावी तीर्थ है, उत्थे जाके की मिलिया? अहंकार। सहबख्ते ने तीर्थ वरद अरदान कर मन में धरे गुमान। हुण दूजी पंक्ति की है? सहबख्ते ने जन्म कर्म मन उतरै मन ते जाए गुमान।
चला जाएगा इथों, ऐश तीर्थ ते आके घुमान चला जाएगा, इत्थे धरे नहीं है। हंकार खत्म हो जाएगा। काम क्रोध ना मोही है, बिन सह लोभ सुआन। सुआन का मतलब होता कुत्ता। काम क्रोध उस जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता जिन्हें गुरु की विचारधारा विच इशनान किया। बिन सह लोभ सुआन, उहदे जीवन विचों सुआन रूप कुकर कुत्ता भौंकड़ा बंद कर देता है, नहीं फिर दोबारे उन्होंने लोभ के अधीन कर सकता। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। सच्चा मार्ग किहड़ा? आ जिहड़ियां हुण तक पंक्तियां आईयां ने। सच्चा मार्ग किहड़ा? गुरु की विचार विच इशनान करना। सच्चा मार्ग किहड़ा? सबना नूं करदान करना। हर का नाम ध्याय सुन सबना नूं करदान। सच्चा मार्ग किहड़ा? मन ते जाए घुमान। सच्चा मार्ग किहड़ा? काम क्रोध न मोहिए, बिन सह लोभ सुआन। जिस हिरदे विच काम क्रोध का प्रभाव नहीं, जिहड़े रस्ते ते वो तुरदा, वो सच्चा मार्ग है, वो धर्म का राह है। सारा संसार उसकी उस्तत करता है। जिहदा जीवन विकारां दी कालख तो मुक्त है। 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। 68 का मतलब 60 ते 8 68। 68 तीर्थ मन्ने ने सनातनी धर्म ने। 68 तीर्थां का इशनान। एक गल मैं होर कह दियां, हुण जिहड़ा 68 तीर्थां का इशनान है, बाहरले किसी मुल्क में 68 तीर्थ है ही नहीं। तुसीं आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वध घूमते हो मेरे नालों, कनेडा ये दूजे पासे आ जाता बिल्कुल धरती दे। अमेरिका सुनिया कि जे इत्थे 68 तीर्थ होण, फिर ये तो केवल इंडिया की वो गल है। साहब कहण लगे, पुत्त मैं तेनों किसी थां का गुलाम नहीं करना चाहता, गुरु की विचारधारा तो हर वक्त तेरे नाल है। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु की याद में जुड़ ये सच्चा इशनान है, और ये रब की दरगाह च प्रवान होया इशनान है। 68 तीर्थ सगल पुन, सारे पुन्नां नालों वड्डा पुन है। जी दया प्रवान, जीवां ते दया करनी। एक पल इत्थे आपां नूं आउणा पैना। साडी सोच विच कुछ इहो जिहियां गल्लां वाड़ दित्तियां। असी कुछ एक निश्चित कर्मां दा नाम दया करनी रख लिया, बाकी सारा कुछ छड्ड दिता। मैं किसी का हक खाना, किसी के बच्चों का लहू पीना, इस नाल कोई वास्ता नहीं। ये इत्थे दया की कोई लोड़ नहीं। असी इहो जिहे निश्चित कर दिते। होर अणगिणत गल्लां इहो जिहियां ने जिहड़ियां नाल कोई बंदा लोड़वंद तड़फ रहा है पर उन्होंदी कोई मदद नहीं कर रहा। ये दया प्रवानी असी ये दया नूं छड्ड ही दिता। सिर्फ 2-3 जीव मन ले भी इन्हां नूं मार के खाना, वो ही बहुत बड़ा पाप है। मैं मास खाण या ना खाण की नहीं गल कर रहा, मैं सिर्फ बेनती कर रहा दया नूं असी सिर्फ 2-3 चीज़ों नाल जोड़ लिया। मेरी माँ तड़फदी, मैं नहीं रोटी दे रहा, उत्थे कोई भी नहीं कहता भी ये माँ नूं रोटी नहीं दे रहा, इहनूं दया नहीं आउंदी। जेड़े बाप ने पाल के पढ़ा के पैरों से खड़ा किया, बाप नूं अनाथ आश्रम च भर्ती कर आया, उदों किसी नहीं कहा जी दया प्रवान, उदों किसी ने भी नहीं कहा। जदों बच्चे का ब्याह करन लगा, मैं अमेरिका तो आया, बहुत बड़े पैलेस में मेरी बेटे का ब्याह होवे, उस बाप ने किन्ने लोगों के कोल जाके अपनी दाढ़ी रोली ते अपनी पग रोली, उदों किसी नूं चेते नहीं आउंदा जी दया प्रवान। मैं इहो जिहा दाज ना मंगा। कल कोई धी का बाप अपने मत्थे ते हथ रख के बैठे, रब्बा जे धी देनी सी पैसा भी देंदा, नहीं तो एडो धी बिना देंदा। लोकी कुखां च धीआं करके नहीं मारते, लोकी कुखां च धीआं नूं लड़कियां करके मारते ने। उदों जी दया प्रवान, किन्नियां धीआं दा कतल हुंदा है, उदों कोई भी नहीं कहता भी जी दया प्रवान। बेनती करनी चाहना है, औरंगजेब का दरबार लगा है,
ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਜੀਆਂ ਕਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 48 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਤੇ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਛੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀਆਂ ਕਾਜੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਦਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਔਗਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੌਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਦਇਆ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਦਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਦਇਆ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਐ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।